हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेकेंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। तो फर्स्ट आप कंपेयर किससे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से करोगे। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में ये क्या हो गया, a1 2x is a1 minus 3 is b2 b1 and 8 is c1। Similarly second equation में 4 is a2 minus 6 is b2 and 9 is c2। ठीक है, तो a1 upon a2 is what, 2 upon 4 which is equal to 1 upon 2। Correct? Similarly, b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 6 which is equal to 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 8 upon 9। इससे क्या पता चल रहा है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। ये पता चल रहा है इससे। तो क्या हुआ, ग्राफ्स आर पैरेलल। पैरेलल माने कि नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज अ पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। समझ में आया? ग्राफ्स क्योंकि पैरेलल है मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज अ पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। नेक्स्ट, 3/2x plus 5/3y is equal to 7। That is a1 b1 c1 and 9 is a2 minus 10 b2 14 is c2। So a1 upon a2 is what, 3/2 upon 9, 3/2 upon 9 which is equal to 3/2 into 1 upon 9 which is equal to 1 upon 6, क्योंकि 3 1s are 3, 3s are 9, so 3 into 2 is what, 6। so a1 upon a2 क्या है, 1 upon 6। b1 upon b2 is equal to 5 upon 3 upon minus 10 which is equal to 5 upon 3 into minus of 1 upon 10। so 5 1s are 5 2s are which is equal to minus 1 upon 6। b1 upon b2 is equal to 5 upon 3 upon minus 10। देखो साइन का ध्यान रखना, माइनस 10 है, सो क्या हो जाएगा 5 upon 3 इंटू माइनस ऑफ 1 upon 10, सो क्या हुआ minus 1 upon 6। सिमिलरली c1 upon c2 is equal to 7 upon 14 which is equal to 1 upon 2। ठीक है, सो इससे क्या पता चल रहा है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। So the graphs are intersecting, that is one solution, therefore the given pair is what, consistent। देखो जब आपको a1 upon a2 और b1 upon b2 से ही पता चल जा रहा है, अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 इसका मतलब ही कि the graphs are intersecting। ठीक है, बट जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तब आप c1 upon c2 में जाके देखते हो कि वो कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। ठीक है, इसीलिए जब इंटरसेक्टिंग होता है तो a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 से ही समझ में आ जाता है कि वो ग्राफ्स क्या है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, therefore the given pair is consistent। नेक्स्ट, 5x minus 3y is equal to 11। that is a1 is 5, b1 is minus 3, c1 is 11 and a2 is minus 10, b2 is 6 and c2 is minus 22। correct? so a1 upon a2 is equal to 5 upon minus 10 which is equal to minus 1 upon 2। reduce it to the lowest term। similarly b1 upon b2 is equal to minus 3 upon 6 which is equal to minus 1 upon 2 and c1 upon c2 is equal to 11 upon minus 22 which is equal to minus 1 upon 2। अब देखो
यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पैरेलल भी हो सकता है और आपका कोइंसिडेंट भी हो सकता है। अब आप थर्ड में जाओगे, थर्ड भी क्या है, -1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो देयरफॉर these graph lines are coincident. These graph lines are coincident, that is they have infinitely many solutions. तो क्या हो जाएगा, these are consistent. समझ में आया? Next, 4/3x plus 2y is equal to 8. Same, a1 is 4/3, b1 is 2, c1 is 8, a2 is 2, b2 is 3, c2 is 12. So a1 upon a2 is what? 4/3 upon 2, which is equal to 4/3 into 1 upon 2, which is equal to 2 1s are 2 2s are, that is 2/3. a1 upon a2 is equal to 2/3. b1 upon b2 is equal to 2 upon 3 and c1 upon c2 is equal to 8 upon 12, that is 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, 4 2s are 8, 4 3s are 12. अब देखो ये भी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Therefore these graph lines are coincident. So it has infinitely many solutions and it is consistent. ठीक है, समझ में आया? Next, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. मतलब क्या ढूंढ रहे हैं, जो पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि ये ढूंढ रहे थे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसको सॉल्व करने के बाद एक और स्टेप आगे बढ़ गया कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली शो करो. ठीक है, फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सो ये सेम हो गया, a1 इज 1, b1 इज 1 एंड c1 इज 5, a2 is 2, b2 is 2 and c2 is 10. So on comparing with the standard format, that is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 upon a2 is equal to 1 upon 2, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2, c1 upon c2 is equal to 5 upon 10, which is equal to 1 upon 2. इससे क्या पता चला, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So ये क्या हुआ, these are coincident, that is, and these are consistent also. कोइंसिडेंट एज वेल एज कंसिस्टेंट, करेक्ट, क्योंकि कोइंसिडेंट है तभी ये लाइंस कंसिस्टेंट हुई. तब आप क्या करोगे, आप इसको ग्राफिकली प्लॉट शो करोगे. अब देखो ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अगर आप इसको डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 5, which is same as your this equation, x plus y is equal to 5. तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम है. तो जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, दैट इज अ सिंगल लाइन, दोनों इक्वेशंस का वन सिंगल लाइन होगा. तो अब प्लॉट जब आप सोल्यूशन ढूंढोगे, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के सेम पॉइंट्स आएंगे. सो लेट्स सॉल्व. तो अब हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स ढूंढते हैं x y. अगर आप x को 0 लोगे, y क्या होगा 5. अगर आप y को 0 लोगे, x क्या होगा 5. एंड नेक्स्ट ले लो, अगर आप y को 2 ले लेते हो, सो x क्या होगा 5 माइनस 2 3. सिमिलरली अगर आप 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का भी देख लो, आपको सेम मिलेगा पॉइंट्स. x को 0 ले लो, y क्या मिला 5,
y को 0 ले लो, x क्या मिला 5। अब y को 2 ले लो, ठीक है। सो ये क्या हुआ, 2 2s are 4, 10 minus 4 is what 6 and 6 divided by 2 is what 3। देखो आपको सेम पॉइंट्स मिले। सो इससे क्या पता चलता है, ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड दे हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। करेक्ट। अब आप प्लॉट कर दो 0,5, 5,0, 3,2, 0,5, 5,0, 3,2। ज्वाइन कर दो। पहला क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे दूसरा लिख सकते हो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हो गया सॉल्व, ग्राफिकली सॉल्व हो गया क्योंकि कंसिस्टेंट था। नेक्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सो दिस इज a1, b1, c1, a2, b2, c2। So, a1 upon a2 is what? 1 upon 3. b1 upon b2 is what? Minus 1 upon minus 3, which is equal to 1 upon 3. And c1 upon c2 is what? 8 upon 16, which is equal to 1 upon 2. Correct? So, इससे क्या पता चलता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So ये क्या हो गया, given pair is inconsistent. Why? Because these are parallel lines, है ना। जब parallel होता है तो given pair क्या होता है, inconsistent. So what have you learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज कंटिन्यू किया एंड इसमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ढूंढना सीखा, साथ में कंसिस्टेंट इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखा। ठीक है, हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।